सिस्टम उनको डस्टबिन में नहीं डाल सकता। दैट इज द कंपल्शन ऑफ द सिस्टम। वो रहेंगे सोसाइटी के सेंटर में। दीज पीपल विल कीप ऑन इंस्पायरिंग massive number of people. For them, history is nothing. History is mythology which they create through their works of history. जो अपने से जो अपने मन में बना के कह दें वही हिस्ट्री है उनके लिए। उनके लिए भगत सिंह जो है उसके आइडियाज दे आर नथिंग। तो इट्स ए ब्रेव हीरो और वो हमारा हीरो है एंड वी जस्ट अपहोल्ड। पार्लियामेंट में एक गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे सारे नेशनल हीरोज के पोर्ट्रेट्स लगते हैं। वहां भगत सिंह का पोर्ट्रेट नहीं लगा। इन्होंने भगत सिंह का बुत पार्लियामेंट से बाहर कॉम्प्लेक्स में बहुत लंबा चौड़ा लगवा दिया। उन्होंने कहा देखिए हमने तो भगत सिंह को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, विदाउट मतलब फॉरगेटिंग व्हाट यू आर सेइंग, यू आर डिसीविंग पीपल। On freedom fighter Bhagat Singh's birth anniversary, a look back at the man who redefined bravery in the quest for India's independence. Was Bhagat Singh the bravest freedom fighter as popular imagination would have us believe? In the struggle against the British Raj, there was almost an elbowing of heroism. In the crowd were known faces, unknown citizens, all joined by a common thread of fierce burning for independence. They willingly went to the gallows or took torture on their chins, sacrificing defining years of their lives. There were also notable exceptions who succumbed, compromising and surrendering to the temptations on offer by the British. Bhagat Singh was just 23 when he, along with Rajguru and Sukhdev, was hanged on 23rd March 1931 by the British in the Saunders killing case. From most accounts, Bhagat Singh refused to pray as he went to the gallows. The three bodies were smuggled out of the Lahore Central Jail and cremated on the banks of the border village of Hossainiwala. Yet his portrait was never included in Parliament's gallery of portraits. Bhagat Singh leaves behind an intellectual legacy. He was a well-read man who spoke up, whether it was against communal and religious violence or untouchability. How then does his appropriation and legacy work in the polarized environment of today? Joining me on the show today is Professor chamanlal, जिन्होंने भगत सिंह के बारे में बहुत रिसर्च किया है और उन पर किताबें निकाली हैं। आज हम भगत सिंह को देखते हैं थ्रू हिज आईज। प्रोफेसर chamanlal, एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग मी एंड टेकिंग योर टाइम आउट। आज की कॉन्वर्सेशन इज अराउंड अ सब्जेक्ट जिसमें आप अथॉरिटी हैं। भगत सिंह की किताबें आपने लिखी हैं और उनकी एक तरह से कहते हैं ना जैसे born again popularity है। Do you also feel कि this born again popularity is something that is actually true? There have been changes in political situation. Till 2014, there was a different kind of long political system, which of course included one time NDA or BJP rule earlier also. But there were other than Congress rule also. लेकिन 2014 के बाद the scene has radically changed. मतलब even जो earlier stance था बीजेपी का या एनडीए का नेशनल पॉलिटिकल अलायंस था, वो इससे क्वालिटेटिवली इस बार फर्क है। एंड इट्स अ वेरी काइंड ऑफ एग्रेसिव काइंड ऑफ regime, and it wants to put everything in a very aggressive manner, and it leaves very little place for reason. They just go in to make a wholehearted attack on anything which they want to attack. तो उसमें क्या है कि पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का जो है ना एक जैसे उलट पुलट हो गया। इन लोगों ने गांधी को यूज करने के लिए शो, वैसे तो ये सारे नाम ही शोपीस, भगत सिंह का नाम भी शोपीस पॉलिटिकल लोगों के लिए, लेकिन गांधी का नाम इंटरनेशनली क्योंकि रिनाउंड है, उसको ज्यादा एक तरीके से होता है कि नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी, तो वो शो पीस के लिए रख लिया है 2014 तक। लोग, आम लोग या पढ़े लिखे लोग या एकेडमिक्स में लोग एक तरीके से एक हिस्ट्री को मान रहे थे
जिसमें कांग्रेस का मेन रोल था, गांधी, नेहरू, सुभाष, ये सारे, पटेल, इन सबका नाम था उसमें, लेकिन उसमें कम ज्यादा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम ज्यादा। नाउ ये रिजीम जो है, सिंस जवाहरलाल नेहरू पर्टिकुलरली वाज अगेंस्ट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, और कहना चाहिए कम्युनलिज्म, गांधी की हत्या में चूंकि आरएसएस का नाम आया हुआ है, पृथ्वीराम गौडसे को आज भी आरएसएस के लोग आउटराइट कभी ये इसको डिस्कार्ड नहीं करते, कभी इसको कंडेम नहीं करते, दे इन ए वे इनडायरेक्टली दे कीप ऑन पैटर्नाइजिंग। तो उनके बारे में जो भी चीजें बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट करता है, उसको ये प्रोटेक्ट ही करते हैं, मैंने रादर देन एवर क्वेश्चनिंग देम। तो वो सारा कुछ जो है वो बहुत रेडिकल चेंज हुआ, और उसमें अब हिस्ट्री को भी एक तरीके से कहना चाहिए कि उलट पुलट करके, तो नाउ कमिंग शॉर्ट कि ये सारे नाम भगत सिंह का हो या अम्बेडकर का हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, सरदार पटेल का हो, नेहरू का हो, गांधी का हो, इसमें नेहरू इज वन हु इज टारगेटेड, अदर नेम्स आर ट्राइड टू बी यूज्ड टू अटैक मी। मैंने बाकी सारे नामों को ये यूज किया जाता है ये करने के लिए कि सरदार पटेल और नेहरू में इतने डिफरेंस थे, सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को यूनाइट कर दिया, एकता कर दी, नेहरू ने कश्मीर का मसला फंसा के रख दिया, और पटेल के हाथ में होता तो कश्मीर का मसला कब तक सुलझ गया होता। इस तरीके से, उसी तरीके से गांधी और नेहरू को भी कई बार दिखाने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह और अम्बेडकर ये दो नए आइकॉन। भगत सिंह वॉज ऑलवेज वेरी पॉपुलर, उसकी पॉपुलैरिटी एक स्टेबल पॉपुलैरिटी थी। मैंने उसको ये था कि सिंस ही वाज मेड ए लवली आइकॉन, कि ये हमारा बहुत रेवोल्यूशनरी था, जिसको आरएसएस से लेके कांग्रेस से लेके लेफ्ट तक तमाम लोगों ने एक इसको लवली आइकॉन के तौर पे रखा हुआ था। दे वांट इमोशनली, जो लोग जिनका नाम इमोशनली टच करता है दिल को, तो ये दोनों लोग। अम्बेडकर हैज हिज ओन सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग, आजादी संग्राम हो या कोई भी मूवमेंट हो, तो शहीद हर मुल्क में होते, हमारे यहाँ भी 1857 में, उसके बाद आगे पीछे हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुए, लेकिन उसमें करीब करीब 100 नाम ऐसे होंगे जो शहीदों में प्रोमिनेंट बन गए होंगे। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा, इन 100 नामों में जो सबसे ज्यादा, जिसके कारण से उनको शहीद आजम कहने लगे, मैंने दिस टाइटल वाज गिवन जस्ट बाय पीपल, उनको किसी ने ऑफिशियली कोई टाइटल नहीं दिया हुआ। तो शहीद बहुत हुए, लेकिन उनको शहीद आजम कहा नहीं लगा। आई थिंक उसमें 2 रीजन, द काइंड ऑफ डेयर ही शोड, मैंने जिस तरीके से बाकी सारे शहीद जो हुए हमारे देश में, कुछ तो बहुत छोटी उम्र में हो गए, खुदीराम बोस वगैरह 18 साल के, करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र में, तो उन लोगों ने कुछ लिख के नहीं छोड़ा। वट एवर देयर एक्शंस है, देयर एक्शंस हैव बीन देयर रीजन फॉर पॉपुलैरिटी। मैंने उनके थॉट प्रोसेस मिलता नहीं है, अगर मिलते हैं थोड़े बहुत खत मिलते हैं, किसी के चंद्रशेखर आजाद के कुछ खत मिल जाते हैं, राजगुरु के कुछ खत मिल जाते हैं, मैंने दूसरे लोगों को मिल जाते हैं। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी, थोड़ी बहुत चीजें अशफाकुल्लाह ने लिखी, लेकिन दैट वाज नॉट ऑफ आइडियोलॉजिकल नेचर। तो भगत सिंह पहले ऐसे रेवोल्यूशनरी थे पूरे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में, हु हैड ए आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, हु न्यू द काइंड ऑफ रेवोल्यूशन वी वांटेड। All other revolutionaries just wanted revolution, an abstract idea of revolution. Now, Bhagat Singh was the only revolutionary who not only had a proper ideas. Bhagat Singh जब आ गए रेवोल्यूशनरी पार्टी में, तो वो HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी।
But on 8th and 9th September 1928, when they held meeting in Firozshah Kotla grounds of Delhi, that was revolutionary, very serious meeting where they changed the ideology of the Revolutionary Party. They changed themselves from HRA to HSI, Hindustan Socialist Republican Association, and its military wing, Hindustan Socialist Republican Army. Now, socialist word, it some people will look kind of very innocuous, but it was not innocuous. It was a word came from a thorough study of the revolutionary movements throughout the world, and they were influenced by Soviet socialist revolution, and that was the thing कि जिन्होंने now उस चीज में भगत सिंह, सुखदेव और कुछ और उनके साथ थे, they had a very advanced thing. चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने पर्सनली डिस्कस की थी ये सारी चीजें. The ideology is one side. On उनकी two sides to Bhagat Singh. उनका ब्रेवरी, उनकी करेज एक तरफ, उनकी आइडियोलॉजी दूसरी तरफ. जब हम उनकी ब्रेवरी और करेज की बात करते हैं, जब फ्रीडम फाइटर्स की ब्रेवरी और करेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है. मगर उनके साथ सुखदेव थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आजाद थे. ब्रेवरी में इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे चमनलाल जी, उनका नाम इसमें भी क्यों स्टैंड आउट करता है? तो चंद्रशेखर आजाद की ब्रेवरी भगत सिंह से कोई कम नहीं थी. Chandrasekhar Azad, the way he has been in his last moments, he has been fighting. तो और चंद्रशेखर आजाद के साथ एक दूसरे रेवोल्यूशनरी थे सुखदेव राज. तो सुखदेव राज को वहां से उन्होंने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से. I myself will face all these things, and he knew whatever is going to happen, and he kept on shooting the British officer till the time he himself was shot dead. तो वो उसने वो ब्रेवरी में, करेज में किसी में वो नहीं थी. लेकिन भगत सिंह की करेज और ब्रेवरी दो तीन चीजों से ज्यादा थी. वो मैं आपको बताता हूँ कि दो तीन चीजें क्या थी. एक, दे हैड प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक्स इन द जेल. इस बात को बहुत कम लोग हाईलाइट करें तो इसको कम महत्व देते हैं. इसका महत्व बहुत ज्यादा है. मीडिया में जो देखिए, एक चीज जो है ना, ये उस वक्त भी थी, आज भी है, कि मीडिया प्लेज ए बिग रोल इन बिल्डिंग अप द इमेजेस, मैंने ट्रू भी और फॉल्स भी दोनों में. भगत सिंह हंगर स्ट्राइक्स, प्रोलॉन्ग हंगर स्ट्राइक्स, एंड ही हैड 3 hunger strikes during his 2-year jail term. And those 3 hunger strikes come over to 167 days, which I have counted and I have put in this new book which I have written, Life and Legend of Bhagat Singh. But one hunger strike which continued for 110 days, that was the hunger strike which had given huge popularity throughout the country and even abroad. Their hunger strike were getting published from Canada, from England, from Australia, from America. Now, this, and in India, all parts, whether it was Madras or Calcutta or anywhere, whether it was Telugu paper, whether it was Tamil paper, तो सब जगह वो हंगर स्ट्राइक की खबरें इतनी ज्यादा छपी. और उसी हंगर स्ट्राइक में जितेंद्रनाथ दास शहीद. जितेंद्रनाथ दास की शहादत का जो बहुत बड़ा एक तरीके से कहना चाहिए कि जितेंद्रनाथ दास को तो उसका मिला ही एक शहीद के रूप में क्रेडिट, लेकिन उनका क्रेडिट भगत सिंह को भी मिला, क्योंकि भगत सिंह वाज ए काइंड ऑफ थिंग. हंगर स्ट्राइक में कई सारे लोग तोड़ गए थे, सुखदेव ने तोड़ दी थी, लेकिन ही वाज द वन हु वाज सस्टेनिंग द हंगर स्ट्राइक टू द लास्ट एक्सटेंट. और उसमें जो है जितेंद्रनाथ दास जब शहीद हुए तो इट इज टोल्ड बाय मेमोरी ऑफ द रेवोल्यूशन दैट हिज हेड वाज लाइंग इन भगत सिंह लैब, और वो उसका भाई किरणचंद्र दास के साथ में बैठा हुआ था, एंड दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम. राजगुरु भगत सिंह से ज्यादा आगे था
कोई कुर्बानी देने के लिए। मैंने ये भी कहा जाता है कि जब तीनों को फांसी देने गई तो सबसे पहले राजगुरु ने ही अपने गले में उलट के फांसी का अरसा अपने आप अपने गले में डाला और उसको सैंडर्स को मारना नहीं था, ही वाज नॉट सपोज्ड टू शूट। और भगत सिंह जब तक चंद्रशेखर आजाद को ये बताते कि ही इज नॉट पंडित जी, ही इज नॉट स्कॉट, वो स्कॉट को मारने गए और वो स्कॉट नहीं थे। एंड व्हेन भगत सिंह रिकग्नाइज, भगत सिंह वाज टू शूट, but before Bhagat Singh could utter complete his sentence, Pandit ji, he is not Scott. He has to मुंह में था कि राजगुरु shot Sanders, and then Bhagat Singh also shot so that he doesn't survive. तो ये मैंने उसमें बहादुरी में तो सुखदेव के ऊपर कोई मर्डर का चार्ज नहीं था, सुखदेव के कुछ नहीं था, बट देन ही वेंट अलोंग विद कि मुझे भी मैंने उसको कॉन्स्पिरेटर माना। तो बाल कटवाने के ऊपर रिलीजियस लोगों ने बहुत ज्यादा एतराज किया, बट देन हाउ ही डिफेंडेड हिमसेल्फ कि अभी तो हमने देश की रक्षा के लिए या देश या देश की आजादी के लिए एक बंद कटवाया है, मैंने से केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ही आर्ग्यूज कि ये तो हमने देश के लिए एक देश शरीर का अंग कटवाया है, इफ नीड भी तो हम अपना अंग कटवाने के तैयार। तो इसमें जो रिलीजियस जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, उसको भी ये लगेगा कि ये आदमी देशभक्ति ने अपने केश कटवाई है, इसने केश अपने धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं कटवाया। हालांकि वो नास्तिक था, नास्तिकता के कारण उसने केश उसने कटवाए हैं एक तरीके से अंडरग्राउंड होने के लिए या पुलिस से बचने के लिए, और अपने आप को थोड़ा ताकि पुलिस उसको पहचान न सके। दैट वाज द रीजन। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग, ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली इतना बड़ा इमेज है, इट डजंट कम इन वंस, द नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच बिकम टुगेदर स्टेप बाय स्टेप वो जुड़ते चले जाते। तो वो हर स्टेप पे उसको ऐसे मौके मिले वेयर ही हैज शोन हिज प्रेजेंस ऑफ his maturity of mind and his courage to take the opportunity in his hands. ये तो मैंने भगत सिंह को, गांधी और भगत सिंह के बारे में ये सारी बहस चलती है कि उसने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को। तो द रीजन इज कि भगत सिंह खुद ही नहीं बच सकते थे पास। He wanted that it's the right time for me to get hanged because my hanging will shake the conscience of, और कॉन्शियस जब लोगों की जागेगी तो फिर लोग अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे, अदरवाइज तो वे ठस पड़े हुए इनको शॉक ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो चमनलाल जी, एक भगत सिंह was a symbol of somebody who stood against oppression, injustice. वो हमेशा अपनी आवाज बोलते थे against any injustice that he saw. He was an atheist. He spoke against communal issues. उन सबको याद रखते हुए how would he have fit into the India of today? भगत सिंह किसी के लिए क्या है? आपने जैसे शुरू में कहा कि everybody is appropriating भगत सिंह and everybody tries to appropriate भगत सिंह। अब उसमें क्या है कि appropriation का जो प्रोसेस है उसमें there is a section जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला सेक्शन कहते हैं या फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। फॉर देम हिस्ट्री इज नथिंग, हिस्ट्री इज माइथोलॉजी विच दे क्रिएट थ्रू देयर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जो अपने से जो अपने मन में बना के कह दें वही हिस्ट्री है उनके लिए। उनके लिए भगत सिंह जो है उसके आइडियाज दे आर नथिंग। तो इट्स ए ब्रेव हीरो और वो हमारा हीरो है एंड वी जस्ट अपहोल्ड इट। लेकिन लोगों के लिए, खासतौर पे बहुत बड़ी जनता के लिए जिसमें मजदूर हैं, किसान हैं, मैं आपको एक इसका पॉजिटिव उदाहरण दूंगा। दिस रीसेंट फार्मर्स मूवमेंट, इस फार्मर्स मूवमेंट्स की जो विक्ट्री हुई है उस विक्ट्री में नो डाउट उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का हाथ था, उनकी अपनी स्ट्रगल का हाथ था। दैट वाज द प्राइमरी reason for their victory. But their mental strength and their moral strength
and their emotional strength that came from Bhagat Singh. Because फॉर्मर्स आपने भी बहुत सारी मीडिया पे भी आता रहा कि वो, लेकिन उसके लिए भगत सिंह बुत नहीं था, वहां बुत कोई लगाया भी नहीं हुआ। भगत सिंह की किताबें थी जो वहां खूब बंटती थी, और आम देखते थे कि आम आदमी किसान जो है वहां बैठा हुआ अपने रात में, जब वो रेस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो दे आर रीडिंग भगत सिंह बुक्स, वर्कर्स के लिए, पेजेंट्स के लिए, उन सारे ट्रेड यूनियन के लिए, टीचर एसोसिएशन के लिए, स्टूडेंट यूनियन के लिए, उन सब के लिए है जिनके लिए भगत सिंह इज एन आइडियोलॉजिकल सिंबल फ्रॉम whom they get strength to fight back any kind of oppression on them. एक भगत सिंह इनके लिए है जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज का है। एक तो उनको मतलब बिगाड़ने की कोशिशें होती और होती रहेंगी, और बहुत सारे लोग उसमें विश्वास भी करते रहेंगे। दैट इज अ ट्रेजिक पार्ट ऑफ इट कि हमारे जो कॉमन लोग हैं, हमारे कॉमन लोग, क्रिटिकल माइंड उनका बनता ही नहीं। क्रिएट ए क्रिटिकल माइंड, जो भगत सिंह हमेशा इस बात की जोर देते थे कि मने क्रांति की तलवार विचारों की धार पर। तो ही said very clearly that ideas are most important, critical thinking is most important. अब वो हमारे कॉमन लोगों तक वो क्रिटिकल थिंकिंग का जो है वो वहां तक पहुंचता नहीं। दे रिमेन इमोशनल एंड affected by emotional kind of thing which come more through WhatsApp university, through trolling. Two things. एक तो when he as a revolutionary आइडियोलॉजी को छोड़ के, मतलब एज अ रेवोल्यूशनरी जिसके अगेंस्ट द कांग्रेस लीडरशिप ऑफ द टाइम, द बिग लीडर्स, इन्होंने धमाके किए, उनके अगेंस्ट बोला, उसमें उनका कोई डिलेमा था उस टाइम? हाँ, देखिए उसमें इंटरेस्टिंग हुआ, मैंने पार्लियामेंट की एक गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स होती विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे सारे नेशनल हीरोज के पोर्ट्रेट्स लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें ये है कि लास्ट एनडीए रिजीम में गांधी के बिल्कुल अपोजिट सावरकर का पोर्ट्रेट लगा है, वहां भगत सिंह का पोर्ट्रेट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? व्हाट्स माय आर्गुमेंट फॉर इट? माय आर्गुमेंट इज दिस कि भगत सिंह ने उसी असेंबली में बम फेंका जिसको आज पार्लियामेंट कहते हैं, और उसी पार्लियामेंट की उस वक्त की प्रोसीडिंग्स अगर उठा के कोई रिसर्चर रिसर्च करे, मैंने तो वो प्रोसीडिंग्स नहीं देखी। आई नो दैट 100% वहां पे जितने लोग बैठे थे वो कांग्रेस के हों या किसी के नहीं, सब ने उसको कंडेम किया। खाली गांधी ने ये नहीं कहा कि ये दो पागलों का कृत्य है, सब लोग, मोतीलाल नेहरू वगैरह, सब ने कंडेम किया, वो सारे प्रोसीडिंग में दर्ज है। अब आप उसी पार्लियामेंट में उस आदमी का बुत लगाओगे जिसके खिलाफ सारे पार्लियामेंट के मेंबर इतना बोले हुए। आपने, इन्होंने काउंटर क्या किया, इन्होंने भगत सिंह का बुत पार्लियामेंट से बाहर कॉम्प्लेक्स में बहुत लंबा चौड़ा लगवा दिया। उन्होंने कहा देखिए हमने तो भगत सिंह को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, पोर्ट्रेट गैलरी क्या, हमने तो उनका इतना बड़ा बुत लगाया। विदाउट मतलब फॉरगेटिंग व्हाट यू आर सेइंग, यू आर डिसीविंग पीपल। बाहर जो बुत लगे हुए हैं महात्मा गांधी का भी लगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी लगा गया, बट देन गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र के पोर्ट्रेट गैलरी में भी पोर्ट्रेट लगे हुए। You are not putting them in portrait gallery, which is more important technically and politically. You are बुत लगाना लगा दिया बनन। अब तो बुत भी नई पार्लियामेंट में बुत भी हट गया वहां से, अब पता नहीं कहाँ वो बुत लगेगा या नहीं लगेगा, आई डोंट नो। So these are kind of things which are raise lot many questions. How political parties and political systems use their own martyrs because people's emotions are linked with them, and to get their votes they use all these symbols and icons, and they never follow their ideas. They are not following ideas of Bhagat Singh, they are not following ideas of Ambedkar as well.
अम्बेडकर के आइडिया को भी कोई फॉलो नहीं करता और भगत सिंह के आइडियाज को भी कोई फॉलो नहीं करता। उनकी रेलेवेंस क्या है आजकल इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, उनकी लेगेसी क्या रही? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। बात यह है कि सिस्टम उनको डस्टबिन में नहीं डाल सकता। दैट इज द कंपल्शन ऑफ द सिस्टम। वो रहेंगे सोसाइटी के सेंटर में। अब वो सोसाइटी के सेंटर में रहेंगे, दे विल इवन कीप ऑन ऑप्रेसिंग दोज हु आर फॉलोइंग देयर आइडियाज। उनको भी ऑप्रेस करते रहेंगे, बट these people will keep on inspiring massive number of people, lakhs of people, students, youth, workers, women, farmers. उनको वो हमेशा इंस्पायर करते रहे, एंड द रेजिस्टेंस विल नेवर नेवर स्टॉप, नेवर एवर स्टॉप। रेजिस्टेंस, जैसे किसानों ने अपना मोर्चा जीता है, तो ऐसे ही व्हेन पीपल गेट मोर एंड मोर conscious of their ideas, more and they keep on following more and more ideas. If they keep on start following their real ideas and the strength of masses grow, then the regime is always in danger. Then so relevance ye hai, rather much more relevance, much more relevance than any other time.